Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay, all right. I request you guys to please, switch on your camera so that I can see you if it is possible at all. Can anybody, any one of you? Thank you, Kangan. Thank you so much. Okay, all right. So, today we are going to start a very interesting chapter that is variations in psychological attributes. It is chapter 1 of NCRT grade 12, and I want all of you to be completely charged up. Okay, I know we meet after a week, right? After 5 6 days, but it doesn't mean that you all should be low in energy. So, did you all have your evening snacks? Food is very important for energy. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay, Kangan had it. What about others? Pooja, Tanushri, Varsha? No, ma'am. Chai, coffee, kuch bhi? Okay, who is this no one? Yeah. Okay, yeah, I. Okay, Pooja also had. Tanushri or Varsha, are you guys here? Okay, they want to stay on mute. Is it so? Okay, all right. We'll begin then. So, yeah, variations in psychological attributes. Do we guys understand the meaning of what is meant by variations? What do we mean when we say something is varying? वेरी करना क्या होता है? Different. डिफरेंट, ओके. और गाइज आई नीड दिस टू बी वेरी इंटरैक्टिव. अगर मुझे इसको इंटरैक्टिव नहीं रखना होता फिर तो मैं वीडियोस ही भेज देती ना. यू गाइज हैव सिंपली गॉन थ्रू दैट. If you want to actually learn things and remember them, let's not attend this class for formality's sake. Let us attend it for actually learning sake. So I want you guys to respond. मुझे आता है नहीं आता है. At least try, make an effort. What is variations? Changes. Yeah, changes. Right. So anything that varies, right? वेरी करना मतलब चेंज होना. चेंजेस इन व्हाट? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. Okay, so when we say psychological attributes, that means we are talking about human beings, or even animals, now that we study comparative psychology also. And कैसे कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के या एक पर्सन के, और उसमें किस तरीके के वेरिएशंस आते हैं. Okay, make sense? That is what we are going to study in this chapter. Okay, so अब ये changes कैसे आ सकते हैं? What can be the factors जिनसे changes आ सकते हैं? So basically we study about two factors. First is individual differences. We all have heard, we all have psychology background. हमें पता है individual differences क्या होते हैं? Yes, ma'am. क्या होते हैं? Individual differences, it means like each and every individual that is different, he or she is different in his or her aspect. Like each and every individual is unique. राइट, एब्सोल्युटली. हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट है. वी ऑल आर यूनिक इन आवरसेल्व्स. Bang on, Pooja. It's absolutely correct. So when we talk about individual differences, so the name of the chapter is variations in psychological attributes. तो पहली चीज तो बाय नेचर ही हमारे सबके बीच में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, राइट? दे आर innate. We all are different from each other, isn't it? And second thing is situationism. Situationism, can you guys comprehend what could this word mean? Or like maybe each and every individual, the person reacts to the same situation differently. Exactly, हमारा बिहेवियर जो है वो हमारे सिचुएशंस के ऊपर और सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? Do you guys want to jot down notes or shall we just discuss? Kangan, Pooja, Varsha?
Ma'am, I think notes would be better. Okay, so situationism means that situationism states that situations and circumstances in which one is placed influence one's behavior. जो भी सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस के बीच में आप हो, या किसी भी सिचुएशन या सर्कमस्टांस के बीच में जब हम किसी पर्सन को रख देते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस उस पर्सन के बिहेवियर में शो होता है, राइट? And individual differences means that it refers to the distinctiveness and variations among people's characteristics. Distinctiveness and variations among people's characteristics and behavior patterns. Pardon me, ma'am. Ma'am, can you just say the keywords so that we can just note down the keywords like? We don't Okay, have to so note down. individual differences में the keyword is distinctiveness and variations. So did we understand कि variability का base क्या है? Variability के दो bases हैं. Number one is individual differences, जो by birth, by nature हमारे अंदर ही हैं. Okay? And number two is situationism, कि किसी भी situation या कोई भी circumstance जो हमारे आगे आता है, that is going to impact our behavior or our psychological attribute. For instance, अब क्लास में बहुत तरह के बच्चे हैं, है ना? You all are here, right? And everybody's IQ level might be different. कोई बच्चा, it is possible that he or she has a higher IQ and the other person has a lower IQ, है ना? But again, आप कितना क्लास में, this is one of the factors. Second factor is the teacher who is teaching you. Maybe is that teacher actually coming to your level to teach you or not? Okay, this could be one of the situational factors. Second situational factor is the environment in which you are studying. Is it actually like supportive, या ज्यादा noise तो नहीं है environment के बीच में? So first one is individual differences, कि आप में कितनी intelligence है. Second could be that what are the situations in which you are studying? Does that make sense? Are you guys here? Yes, ma'am. Have I bored you all? No, ma'am. Okay. Thank you, Pooja. Varsha, are you here? Varsha is not responding. मुझे लगता है she just... Okay. Online classes have a lot of benefits. ओके, सो अब हमने पढ़ा कि वेरी कैसे करते हैं ना, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. हमने पढ़ा कि वेरिएशंस किन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. अगर हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स वेरी करते हैं, तो हमारे पास कोई बेस तो होना चाहिए ना. I gave you like a 22 minutes lecture on psychology क्या है, and it is a science, और उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, क्या मेथड्स स्टडी करते हैं, है ना. तो अगर हम कोई भी बात कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि नेचर और नर्चर के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है, सो वी शुड बी एबल टू असेस दीज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. अगर असेसमेंट नहीं होगी, अगर असेस ही नहीं करेंगे, तो कैसे बोल सकते हैं? अपनी मर्जी से हमने कह दिया कि नेचर और नर्चर दो फैक्टर्स हैं. नो, राइट? Yes, ma'am. Yeah. So assessment का क्या मतलब है? When we say assessment of psychological attributes, what is your understanding of assessment? Assessments हमारे schools और colleges में भी होती हैं. Some sort of test like which measures some aspect. Absolutely right. हाँ, तो जिसमें हम मेजर करते हैं, when we talk about psychological attributes की assessment, we mean that we are first of all measuring those psychological attributes. आप सबने अपने 11th 12th या किसी भी क्लास में psychological testing करी होगी ना, लैब में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं हम सब, Yes, ma'am. है ना. तो सबसे पहले क्या करते हो आप मेजरमेंट करते हो उस चीज की, एंड देन उस चीज को इवेल्युएट करने के लिए आप क्या करते हो? आप मैनुअल चेक करते हो, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेजर कि इस पर्सन का या इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट कितना है, एंड देन यू इवेल्युएट इट. मेक सेंस? फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में कितने मार्क्स आए? आउट ऑफ 100 यू स्कोर्ड
45 marks. Okay, so we measured कि इस बच्चे का calculate करके 45 marks बन रहे हैं. After that we evaluate. Okay, what was the passing criteria? It was 35 marks. What grade is this student lying in? वो A grade में lie कर रहा है, B में lie कर रहा है, C में कर रहा है या D में? होता था ना ग्रेडिंग सिस्टम, आपने अपनी करा होगा कहीं भी ग्रेडिंग सिस्टम. देन वी इवैल्यूएट. तो ओके, दिस पर्सन हैज स्कोर्ड 45 मार्क्स, मे बी दैट पर्सन हैज अ C grade. Make sense? So when we talk about psychological assessment, psychological attributes की assessment, we first of all measure the things and then we evaluate those things. और ये सारा कुछ कैसे होगा? Using different methods. हर चीज के लिए आप सेम मेथड तो नहीं अप्लाई कर सकते हो? कर सकते हो? No, Yes or ma'am. no? No, right? जो भी चीज आप मेजर करना चाहते हो, हर एक चीज का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, डिफरेंट मेथड होगा, राइट? इंटेलिजेंस मेजर करनी है तो इट माइट हैव अ डिफरेंट टेस्ट. अगर आपको कुछ पर्सनालिटी मेजर करनी है तो उसकी अपनी टेक्निक्स होंगी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल असेसमेंट, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट कैसी टेस्टिंग टेक्निक्स को यूज करती है? We say psychology is a science, right? When we talk about psychological assessment, the psychology uses systematic techniques, systematic testing procedures. Okay, so it is not like ki aap kuch bhi, but everything that psychology uses, it is very much, valid and it is reliable. हम सारे टेस्ट को अच्छे से we evaluate the abilities and everything on the basis of systematic testing procedures. और उन सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स को यूज करके हम एबिलिटीज को, बिहेवियर्स को और पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल को असेस करते हैं. इज दैट मेकिंग सेंस? आर यू गाइस एबल? you Yes. might find it boring to some extent, maybe. हो सकता है. If you're finding it boring, you can let me know. I'll rush through this. इसके बाद theories हैं which are really interesting. Are you guys finding it boring? No, like I really like this assessment topic. Okay, all right. That's a little motivation for me. Okay. तो अब असेसमेंट क्या है? असेसमेंट कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, है ना? तो व्हेन वी से फॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मल मतलब देयर इज अ फॉर्म इन दैट असेसमेंट. फॉर्म से याद करो. फॉर्म मींस अ प्रॉपर फॉर्मेट होगा उस चीज को करने का, राइट? So everything it is derived from a keyword, right? Formal means it has a particular format जिस तरीके से वो चीज हो रही है. So when we talk about formal assessment is objective in nature. We discussed this very much in depth if you guys were there in previous sessions also, कि subjective क्या होता है and objective क्या होता है. Subjective is what is subjective? Ma'am, subjective is one person to another. Subjective is Like which varies from one person to another. Like each and every person has their own exactly interpretations about things. very correct. Subjective is that which varies from subject to subject. Objective is कि everything is happening in a very objective manner. जैसे MCQs होते हैं, ये true false होता है, true false होते हैं, ठीक है? So formal assessment is objective in nature. वो चाहे मैं परफॉर्म करूं, चाहे कंगन परफॉर्म करे, चाहे वर्षा परफॉर्म करे, उसके रिजल्ट्स जो है सेम ही आएंगे. Okay, it's not like कि like you know when you appear for your exams in university, तो एक टीचर मार्किंग करती है तो it's possible वो आपको 8 out of 12 देती है, and the another teacher is probably giving you 10 out of 12 for the same question. Which type of assessment would that be? Same question is being checked by two different teachers. One of them is giving you 10 out of 12, another one is giving you 8 out of 12. Will it be subjective assessment or objective assessment? Objective. Subjective assessment, yes, because it varied. डिफर कर गया ना. अब टीचर की अपनी मर्जी है, उसको जो आंसर, हर एक की लाइकिंग डिफरेंट है. कोई चीज मुझे पसंद आएगी, इट इज पॉसिबल अदर पर्सन इज नॉट लाइकिंग द सेम थिंग, राइट? सो दैट इज ऑब्जेक्टिव असेसमेंट. सॉरी, दैट इज सब्जेक्टिव असेसमेंट. ऑब्जेक्टिव वुड बी कि अगर मैंने सी, द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन वाज सी,
तो चाहे वो मैं चेक कर रही हूँ, चाहे वर्षा चेक कर रही है, चाहे कोई भी चेक कर रहा है, इट इज गोइंग टू बी मार्क द सेम वे। ऐसा नहीं है एक टीचर उसका 1 मार्क दे देगा, दूसरा उसके 2 मार्क्स दे देगा। सो formal assessment is objective in nature, it is standardized, okay? So पूरे उसके reliability, validity जो चीजें आप probably in further classes you will learn, so it is standardized, like it proper uski reliability, validity, everything is tested and then it is standardized and it is organized in nature. As I told you ki formal assessment has a proper format. Another type of assessment is informal assessment. Informal assessment, just as we discussed right now, है ना, subjective type of assessment, जिसमें वो case to case vary करेगी, या एक assessor से दूसरे assessor, assessor means the person who is assessing, तो मैं टेस्ट को चेक कर रही हूँ या कोई और टेस्ट चेक कर रहा है, उस इट विल वेरी, या फिर मेरा पार्टिसिपेंट कौन है, इट इज गोइंग टू वेरी अपॉन दैट आल्सो. So that is informal type of assessment. So we as psychologists, yeah, psychology students, what kind of assessments do we perform on our subjects? हम Oh, किस टाइप के assessment की बात करेंगे? ma'am, it could be, I think, objective as well as subjective. Okay, right. But formal होगी या informal No. होगी? It's formal and it's subjective. Ma'am, it's both, I feel. Okay. How is it both? Oh, so like recently I had a sentence completion test, and I think उसमें जो sentences होते हैं ना, like there are few words and then वो sentence को complete करना होता है, and I think it is very much subjective, like it varying from person to person, Okay. and it also like varies from one assessee to another. तो Yeah, because there is no standardized way, because the like the assessor, that person has to mark the mark the sentence according to his perception. right. So like if Okay. he feels that the statement is positive, then he'll give 2 marks. If he feels that it is negative, so the statement, the participant that has written the statement, each assessor can perceive that a situation as positive, negative, or neutral. So I think it varies. Okay, so obviously हमारे जो subjects जो respond करेंगे that would vary, but scoring में I think you guys are properly trained, isn't it? Yes, ma'am, but like sentence completion test में ना, जब scoring बताया हुआ कि like positive के लिए 2 होगा, negative के लिए 1 होगा, neutral के लिए 1 और 0 Right. होगा. This But then happens जो because assessor होता है, या बट जो assessor होता है ना, like उस पर depend करता है कि वो किस तरीके से उस sentence को perceive कर रहा है. right, it happens because we are dealing with human behavior, which is very versatile in nature, right? So of course maximum we try to use formal kind of assessment in psychology, but we do have projective techniques, या फिर जैसे आपने बोला sentence completion test, रोशा के या फिर TAT है, these techniques are also used. So which might not be very objective in nature, but since we are dealing with human behavior, so we do use those assessment techniques also, but mostly it is formal. और जो आपने बोला that is also absolutely correct, Pooja. It does vary from person to person. Okay, आगे चले. Yes, ma'am. Okay, so psychological assessment uses systematic testing procedure. There is a proper system, a format in which we move on, and we try to evaluate a person's abilities, number one, the personal qualities of an individual, and a person's behavior using these psychological assessments. Okay, when we test abilities, so maybe we are testing the aptitude of a person or maybe intelligence of a person, है ना, तो वो उसकी abilities में आ गया कि कितना उसका caliber है. And we can test personal qualities of an individual also. हम कितने सारे personality के test use करते हैं, isn't it? EPQR use करते हैं, Rorschach use करते हैं, या फिर there are so many others too. And then the behavior of a person, जैसे हम observation करते हैं, case studies पढ़ते हैं. So using psychological assessments, we try to test abilities, personal qualities, and behaviors of a person. Okay, easy.
So Yes, ma'am. assessment methods. Yeah. Yeah. So assessment methods में we are going to study these 5 types of assessment methods. ठीक है, they are very very easy, self-explanatory. When we talk about psychological test, so psychological test is what? What is a psychological test? हमने अभी पढ़ा है. Psychological Like, assessment and psychological test. ma'am, where I think there is no right or wrong answer, and it is objective in nature, and it mostly measures the attributes of an individual. Okay, yes. So when we define psychological test, it is defined in NCRT. It is an objective and standardized measure of an individual's abilities, mental or behavior characteristics. Right, makes sense. But again, वो आगे ही अपनी further lines में they contradict this thing and they say that not only objective, but when we talk about psychological test, we also have projective techniques and we do have other things also. Like we discussed, sentence completion or projective techniques and everything. So this is psychological test, very easy. जब हम interviews की बात करते हैं, so we all know what interviews are. है ना? Yes, ma'am. So interviews, what are interviews? What is the Ma'am, where, purpose of? Mhm. where there is an interviewer and there is an interviewee, and the interviewer asks questions to the interview. It can happen with one person, and it can also take place in a group. So the interviewer can ask different kinds of questions, which can be open-ended, which can be close-ended. Absolutely correct. Good. So interview is in which we are seeking information from the other person. It could be from one person, it could be from a group of people. So that is how we interview, right? We interact and we seek information. Next one is case study. So what could be the difference between an interview and a case study? Ma'am, can I? Yeah, sure. Yes, in case study, we are considering one case, one individual case. Mm-hmm. And Right. interview में we are interviewing. There are 2 type of interview, like a structured and unstructured interview. So it can be a group interview as well and the individual interview. Like this way. Hello. Ma'am, your voice breaking, I guess. Yes, ma'am, your voice is breaking. No, No, ma'am, still the same. No, ma'am, same. Is it audible? Yes, Pooja. Okay, can you guys hear me now? Yes, yes. Now we can hear you. Okay, perfect. I've changed my network connection. I'll put it on recording again. Just a minute. Okay, can you guys wait for a minute? Sure, ma'am. Thank you.
Okay, let us continue for this slide, right? You guys can see my slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, perfect. So yeah, we were on case study. So case study is when we are talking about only one person, right? And while in interview we are interacting with the other person and then we are doing something. In case study we are doing a complete in-depth study of just one person. And then we have observations. What do we do in observations? We are observing the behavior, the way the client. Exactly, we are observing the behavior. Yes. And we are observing it probably in a very systematic and organized manner, and we are trying to record the behavior of the other person Yes. or other things. Including non-verbal and verbal gestures, no? Exactly, absolutely. Yeah. And then we have self report. Now we need to understand the difference between interviews and self report. While in interview, what are we doing? We are interacting with the other person and then we are seeking information from that person, right? Whereas in self report, the person is himself giving factual details about himself. So it could be कि वो एक क्वेश्चनियर में आपको अपनी डिटेल्स दे रहा है, या फिर वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की फॉर्म में, या उस पर्सन की डायरी है ना, पर्सनल डायरी जो लोग मेंटेन करते हैं. So in self report, the person is himself giving the factual information about himself or herself. Whereas in interview, we are interacting with the other person and then we are seeking information. Make sense? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, what is psychological test? Psychological test, it is an objective and standardized measure. Okay. Through which we try to seek to study the person's other person's mental and behavioral abilities or characteristics. Okay. It's like a interview inventory or personality inventories, like this kind of test, na? Exactly. It could be anything. There are a number of variety of psychological tests. Okay. So psychological testing is in itself a complete subject of psychology. So domains of psychological attributes. ठीक है. Though there are a number of attributes, like बहुत सारे domains हैं psychological attributes के, we are going to study only these 5: intelligence, aptitude, interest, personality, and values. Okay, we have a number. Okay, I'll ask you people and you'll tell me कि इन सब का क्या meaning है. अगर आपको नहीं आता है, you need to tell me कि नहीं आता. Okay, like, so do we need to define them? नहीं, आप बता दो what is your understanding of intelligence. Okay, so I think intelligence We are checking the IQ level. Yeah, like the capacity to learn or to acquire new things. And yeah, like I would describe that as intelligence. Okay, this was Pooja, right? Yeah. Yeah, Varsha, what is it Yes, according to you? according to me, the intelligence is supposed to be checking. We are checking the IQ level of the individual. Okay, all right. Tanushri? The ability to comprehend things, like Okay, how right. much it varies according to your IQ. Like if you have better IQ, you will be able to do things in a better way, and if you have IQ like a borderline IQ, you will do things accordingly. Okay, right. ठीक है. How does intelligence and aptitude vary? तो फिर aptitude क्या होगा? Sugandha? Okay, I think she's not here. Can I? हाँ जी, बताओ.
Ma'am, aptitude is something like we already have a potential and we need something to take it out. Like, suppose I have a potential of dance, but I need a dance teacher. I need a like environment that supports me, like to take out the Very abilities. true. Like, बिल्कुल सही है. Absolutely. So when we talked about intelligence, intelligence is a capacity. है ना? If you talk about Wechsler, तो उसने भी कहा it is a global capacity. So intelligence is already within you. It is your capacity to do things, to learn things, or to do anything. To think rationally, to act purposefully, or deal effectively with the environment. So when we talk about intelligence, it is a capacity. Whereas aptitude, as Kangan rightly said, it is the potential. Aptitude आपके अंदर है. It is your potential that is already within you, and you need somebody to polish your those skills, isn't it? Now, just give me. Okay. Actually, it has stopped recording and I'm no more the host because I got disconnected. Okay. So intelligence, as I said, intelligence एक capacity है which is already within you. Okay, that determines कि आप चीजों के साथ कैसे deal करते हो. Whereas aptitude is your potential. Potential to acquire things. For example, किसी person के बीच में ज़्यादा mathematical aptitude होता है. The other person may or may not have that aptitude. Okay, तो अभी आने वाली like slides में theories में you will very well be able to distinguish between aptitude and intelligence. You study various types of intelligence also, right? Proposed by various theorists. And then we have interest. What is interest? Our likes and dislikes. Yes. एग्जैक्टली हमारी प्रेफरेंसेस. हमने बोला इंटेलिजेंस हमारी कैपेसिटी है, ठीक है. एप्टीट्यूड हमारा पोटेंशियल है. कैपेसिटी हमारे अंदर ऑलरेडी से वी ऑलरेडी हैव द कैपेसिटी टू डू समथिंग. अगर हमारे अंदर एप्टीट्यूड है किसी चीज को लर्न करने का, पोटेंशियल है, सो वंस दो स्किल्स आर पॉलिश्ड वी कैन वेरी वेल go with that thing. Interest is our preferences, whether or not despite of having in spite of having the aptitude for something, क्या मेरा उस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है, isn't it? So Yes. it's Yes. possible that I have very good aptitude in logical reasoning or in mathematics, but मेरा इंटरेस्ट नहीं है. Will I be successful? No. No, because I don't have that EQ to do those things. EQ is emotional quotient. Then there is something called personality. What is personality? Unique characteristics of an individual which are stable. Yeah, relatively stable characteristics of a person, relatively enduring characteristics of a person, जो उस person की personality को बनाते हैं. If I have बड़ी तो उस बंदे को मैं कैसे, how will I define that person? Through his personality, कि उसकी characteristics क्या क्या है, right? So that is personality. Then we have values. Values क्या होती हैं? beliefs. Exactly, हमारे beliefs, relatively enduring beliefs of a person. So I hope it is making sense. मतलब ये सारी चीजें you already know, but when you're defining also you should know the keywords. कि intelligence is the global capacity to if we talk specifically about Wechsler's definition, तो Wechsler ने कहा to think rationally, to deal effectively with the environment, and to act purposefully. Then aptitude is what? Aptitude is your potential to learn new things or to acquire knowledge or to do anything. Interest is whether or not you prefer doing something or not, your likes and dislikes. That is defined by your interest. Personality is the characteristics that you already have. And then there are values, which is the beliefs that you hold. Okay.
So there are some definitions of intelligence which I'll go through a little quickly. ठीक है, तो इंटेलिजेंस हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस करा कि हमारे अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस क्या होता है. सो इफ वी टॉक अबाउट द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, इट मीन्स कि हम चीजों को कैसे परसीव करते हैं. इट इज आर पावर. Again, capacity, power, ability, all these things are synonymous to each other, right? So if I talk about specifically the dictionary meaning, तो उसका क्या मतलब है कि कितनी पावर है या कितनी कैपेसिटी है एक पर्सन में चीजों को परसीव करने के लिए. सबसे पहले तो एक इंटेलिजेंट बच्चा क्लास में ध्यान से सुनेगा, राइट? दैट शोज दैट ही इज परसीविंग द थिंग्स. इट्स नॉट दैट सिर्फ उसको सेंसेशंस मिल रही हैं, बट ही नोज हाउ टू ऐड मीनिंग टू दोज सेंसेशंस एंड परसीव दोज थिंग्स. करेक्ट? Did that Yes, make ma'am. sense for you guys? Yes, Yes, ma'am. एक Yes. इंटेलिजेंट बच्चा, he will not only sense कि हाँ अब साउंड आ रहा है, he is getting the stimulus sensation मिल रही है, but he is not perceiving anything. No, he will add meaning to those sensation कि टीचर जो बोल रही है, am I able to comprehend those things or not? Number 2, if we talk about an intelligent student, तो वो क्या करेगा, वो चीजों को learn भी करेगा, isn't it? He will be able to learn things. जो Yes, टीचर ma'am. क्लास में बोल रही है, ऐसा तो नहीं है इट विल वैनिश अवे फ्रॉम हिज माइंड, कुछ भी उसको सिखाया जाए. नो, राइट? याद No. होगा कि नहीं होगा Yes. उसको? Yes, yes. Yes, ma'am. I need you guys to respond, okay? Now the interesting part is coming. He will also be able to understand the things. ऐसा नहीं है कि बस अपनी मर्जी से ही whatever the other person is saying, he will be able to comprehend those things, understand the things which are being taught in the class. And he'll also be able to know, अगर उसको कोई पिक्चर दिखाई जाती है, he will know, or he will be able to know कि हाँ this thing is like this or like that. So he will have this ability to perceive things, to add meanings to his sensations. अगर आपको किसी भी word का meaning नहीं समझ में आता, or you're not able to match up with the way I'm teaching, please ask. Yes, ma'am. Okay? Yeah. So second is he'll be able to learn the things. Third one is वो समझ भी पाएगा चीजों को और उनको जान भी पाएगा. Okay. Then Alfred Binet, he was like the first, he was one of the pioneers जो philosophy से intelligence को एक psychological meaning जिन्होंने intelligence को दिया. And this entire chapter is going to be mostly about intelligence itself. So it's very simple. उन्होंने कहा कि intelligence is the ability to judge well. आप चीजों को अच्छे से जज कर पाते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर उस दिन हमने स्ट्रेस का चैप्टर करा है ना, so when I say he has the ability to judge well, so you should know कि सामने जो stimulus है, am I really supposed to be scared of that stimulus or not? है ना, करा था ना, किस टॉपिक में करा था? किस टॉपिक में करा था हमने? Ma'am, can you please repeat your question? यस, आई कैन रिपीट माई क्वेश्चन. हमने स्ट्रेस वाले चैप्टर में करा था ना कि जब भी हमारे सामने कोई स्ट्रेसर आता है या कोई स्टिमुलस आता है, तो हम उस स्टिमुलस को सबसे पहले जज करते हैं कि वेदर इट इज स्केरी और डू आई एक्चुअली नीड टू बी अफ्रेड ऑफ दैट स्टिमुलस और नॉट. तो Okay, ये okay. चीज हमने किस Primary chapter में appraisal, पढ़ी थी? Secondary appraisal में Which क्या था? appraisal? Ma'am, primary, I guess. appraisal. Yes, Very model. good, right. Model. You guys study and understand. Yes. Yes, cognitive appraisal. किसने दिया था cognitive appraisal? Oh, ma'am, Lazarus and Faulkner. हाँ, Fogman बराबर. Wonderful. Okay, I have a class of intelligent people. So एक intelligent बच्चा क्या है? He will have the ability to judge well. कि do I actually need to be scared of the stimulus or not? Then he will be able to understand well. अब मैं आपको क्लास में समझा रही हूँ. If you have the ability and the background, if you have the kind of intelligence Alfred Binet is talking about, so you will be able to understand well. Yes or no? Yes, Am I ma'am. sitting in a class of intelligent people? Are you guys able to understand? Yes, ma'am. Okay, perfect. अच्छा मुझे बताओ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, एल्फ्रेड बिने ने कब दिया था अपना टेस्ट, फर्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट? I'd given you in academic daily dose of psychology. Which year? 1905. Yes. Okay, 19. very good. ठीक है. You guys are
actually intelligent. You're even able to remember well. Okay, so intelligent people, they can judge well, they can understand well, and then they can reason also well. क्यों याद है हमें? Because हमने पढ़ा था, या फिर because हमने जो भी daily dose में दिया गया था, we read it and we learned it properly. So you have a proper reasoning. अगर नहीं भी याद, even then you will have a reason behind that. Right? So Yes. you can learn this with an acronym, jury. So he said intelligent people can judge well, they can understand well, and they can reason well. Why का कोई use नहीं है, but you can use it for learning. Alfred Binet की definition. Okay, and Alfred Binet, as I told you, he was one of the pioneers जो psychology को philosophy से किस तरफ लेके आया था? Towards a scientific perspective, है ना? उसको एक साइकोलॉजी फिलोसफी से साइकोलॉजी की तरफ इंटेलिजेंस के मीनिंग को लेके आया था. ओके, से इसको डिफाइन करा. वेस्लर ने बोला इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. When I say global capacity, I mean that entire throughout the globe, ठीक है, everybody has this capacity. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ा है सबने? इसको हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे इंटेलिजेंस में. नॉर्मल एनपीसी पता है सबको? Anybody who does not know what is an NPC, normal probability curve? No, ma'am. पता है नो मैम या नहीं पता है नो मैम? पता मैम, नहीं पता. नो वाला मैम. अच्छा, नहीं पता है. हाँ, नहीं पता मैम. ओके ओके, I'll tell you guys. तो ये एक बहुत ही प्यारा सा कर्व है जो आपको पूरी साइकोलॉजी में आपकी जान नहीं छोड़ेगा. ठीक है, तो एनपीसी क्या कहता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन, आप कोई भी चीज, कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट स्टडी करते हो, तो एनपीसी को हम कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. यू गाइस कैन पेन इट डाउन. ठीक है, या फिर इसको इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व या बेल शेप्ड कर्व, गॉसियन कर्व भी कहते हैं. तो एनपीसी में क्या कहते हैं कि ज्यादातर पॉपुलेशन इस एरिया में लाई करती है. ओके, तो दिस एरिया कंस्टिट्यूट्स मोर देन 50%, लाइक 68%. 68% के अराउंड पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, इट विल बी एवरेज पॉपुलेशन, जिसको हम कहते हैं जिनके पास एवरेज एबिलिटीज है. ठीक है, 68.7 या कुछ ऐसे होता है. एक एक्सट्रीम एंड ये है. एनपीसी कभी भी जो है ना टच नहीं करता है इसको, ये जो लाइन है इसको, एक्स एक्सिस को. ये एक ग्राफ के ऊपर एक तरीके से यू गाइस हैव टू इमेजिन कि ये बना हुआ है. ओके, एक्स, दिस इज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं. तो वो कहता है कि ज्यादातर पॉपुलेशन जो दुनिया में रहती है, इट इज एवरेज. ठीक है, आप, इट्स पॉसिबल कि हम सबकी इंटेलिजेंस जो है वो एवरेज ही है. मेरी भी 100 IQ होगी, आपकी भी 100 होगी. देयर आर फ्यू पीपल लाइक 12-13% जो इस एंड पे लाई करते हैं, और 12-13% जो इस एंड पे लाई करते हैं. तो अगर मैं सिर्फ इंटेलिजेंस का एग्जांपल लेके या समझाने की कोशिश, like a few percentage of people who lie on this end, who are not very intelligent, who lie below the level of normal average intelligence of a human being, जिनको हम mental retardation वाली side में, nowadays we don't use this term mental retardation, we have a different term for that. Disability. हाँ, intellectual disability, right? And दूसरी side पे there is only a few population, few people who have superior level of intelligence, जिसको हम genius category में डाल देते हैं. Okay? ठीक है, so this is what NPC says. तो इसका मतलब है कि entire population of the world, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी इंटेलिजेंस बिल्कुल ही जीरो होगी, क्योंकि NPC is never touching the x axis. टच कर रहा है कभी भी? नहीं. It never touches the x axis, है ना? मैंने आपको अभी बताया. तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी इंटेलिजेंस जीरो होगी, या जिसकी पर्सनालिटी ही नहीं होगी, जीरो होगी. ठीक है, एवरीथिंग इज लाइंग ऑन अ कंटिन्यूअम. कंटिन्यूअम मतलब कि everybody has some or the other level of intelligence in that person. जब आप आगे जाके थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ोगे तो आप और अच्छे से समझ पाओगे कि हम किस तरीके की इंटेलिजेंस की टाइप्स की बात कर रहे हैं, है ना?
बट इट्स नॉट दैट देयर इज इवन अ सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड हु इज नॉट इंटेलिजेंट, या फिर जिसके पास लर्निंग बिल्कुल ही जीरो होगी और एनीथिंग लाइक दैट. सो वेशलर ने क्या बोला, वेशलर सेड, ये सारा मैंने आपको क्यों बोला, I wanted to explain you this thing, this global capacity, okay? Intelligence is the global capacity of an individual, which, entire the globe, सबके पास ये है. Global and aggregate capacity of an individual to think rationally. Rationally का क्या मतलब होता है? You guys can note it down. Reason well. ठीक है? रीजनिंग के साथ अच्छे से सोचने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर, टू थिंक रैशनली. ठीक है, कि मुझे ये क्लास अटेंड करनी चाहिए या नहीं चाहिए, एनसीईआरटी की क्लास. इज इट वेस्टेज ऑफ माय टाइम और एम आई एक्चुअली गोइंग टू समथिंग दैट विल ऐड टू माय नॉलेज और मेरे एग्जाम्स में हेल्प करेगा. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 इज टू एक्ट पर्पसफुली. मैंने ध्यान से रीजन के साथ सोचा, अच्छा बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है. 2 घंटे की क्लास है, विल आई बी एबल टू सिट? चलो बैठना ही पड़ेगा. अच्छा, बट नो, अगर मैं ध्यान से सुनूंगा तो इट इज पॉसिबल मेरे एग्जाम की तैयारी हो जाए और जो चीजें मुझे ऑलरेडी नहीं आती मैं वो भी समझ जाऊं, है ना. आपने प्रॉपर रीजनिंग करी होगी कि छोड़ो यार, इसको क्या देखना, हम कोई मूवी देख लेते हैं. बट देन अगेन आपको दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ आया होगा आपके दिमाग में. लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वुड हैव कम टू योर माइंड, इजंट इट? And then you would have decided कि अच्छा चलो, I am an intelligent being, I've done complete reasoning, तो मैं ये NCERT की क्लास अटेंड कर ही लेता हूँ, rather than watching a movie at that time or sleeping at that time or just simply playing, है ना. अब हमने सारे pros and cons करे होंगे. It's actually a very difficult task to come in the class. Yes or no? No, ma'am. No, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो ऐसे आ गया होगा. Something would have happened, okay? You would have thought rationally. Then you acted purposefully. आप किसी पर्पस के साथ इस क्लास में आए हो, is it? बिना Yes. पर्पस के तो नहीं आए ना, कि टाइम पास करना है, चलो यार अब क्लास ही लगा लेते हैं, इंटरनेट पड़ा हुआ है, कुछ तो करें. So there must have been purpose. So that is how you took an action. You thought with complete reasoning everything, and then you acted purposefully. You had a purpose. अगर आप कहीं जाते भी हो, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कोई एग्जाम में भी अपीयर करते हो, you have a purpose behind it. Those of you who wish to clear MPhil or NET entrance exam, you have a purpose behind it. आपने बहुत रीजनिंग के साथ सोचा होगा कि मुझे एक्चुअल में इसी एग्जाम के लिए अपीयर होना है, तो क्यों होना है. जितने भी आपके पास रिसोर्सेज होंगे उनके बेसिस पे, है ना. एंड देन आपकी जो एनवायरनमेंट है, यू वुड हैव डेल्ट इफेक्टिवली विद दैट एनवायरनमेंट. एक इंटेलिजेंट इंसान अपनी एनवायरनमेंट के साथ बहुत इफेक्टिवली डील करता है. दैट मीन्स कि environment could be anything. Environment could be even the distractions that are in your phone. That is also an environment that is providing you a stimulus कि भाई मुझे use करो. You should rather switch your app to WhatsApp or Instagram or Facebook rather than just simply keeping it stuck to the phone. तो आप अपनी environment के साथ क्लास, हम सब कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं ना. आपको पढ़ना है, आपका एग्जाम है या कुछ भी है. So Yes, ma'am. first of all, the first thing that we do is we think rationally, then we act purposefully, and we deal effectively. Do we all do this to some or the other extent? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, we all are intelligent beings, है ना. तो आपको ये डेफिनेशन लर्न भी हो गई होगी, है ना. मैंने आपको एनपीसी के साथ समझाया कि ग्लोबल कैपेसिटी है, ठीक है. सभी में ये कैपेसिटी है टू सम और द अदर एक्सटेंट. देन वी थिंक रैशनली. हम रीजनिंग के साथ बहुत दिमाग के साथ सोचते हैं. हम किसी पर्पस होगा तभी हम एक्ट करेंगे. अगर आपने क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग वो सारी पढ़ी होगी, पढ़ी है क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग? Yes, विल इट ma'am. बी टू मच? सबने पढ़ी है, Yes, ma'am. है ना. तो अगर कैट जो है लिवर प्रेस करती है, उसके पीछे भी एक पर्पस है. सी इवन एन एनिमल हैज इंटेलिजेंस, Yes, ma'am. isn't Definitely. it? और वो सीख जाती है कि मुझे लिवर प्रेस करना है तो मुझे खाना मिलेगा, मैं इस केज से बाहर आ जाऊंगी. इट्स एक्टिंग विद अ पर्पस एंड शी इज ट्राइंग टू डील इफेक्टिवली विद हर एनवायरनमेंट. आई डोंट नो उसने रीजन के साथ सोचा होगा या नहीं, बट ये काम तो उसने हमें करके दिखाया. So this is a very famous definition by Wechsler. एग्जाम में भी आती है. So this is how you should be defining it,
है ना? अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन का ही आ जाता है क्वेश्चन, so you should define कि dictionary meaning is this, but most accepted and most best definition is by Wechsler. First definition is by Binet. Binet was the one who actually gave a psychological meaning to intelligence. अच्छा, फिर गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ने क्या कहा कि एक इंटेलिजेंट पर्सन सिर्फ अडेप्ट ही नहीं करता अपने एनवायरनमेंट को. दिस वर्ड इज नॉट अपार्ट, इट इज अडेप्ट. ठीक है, वो सिर्फ अडेप्ट ही नहीं करता है, वो अपने एनवायरनमेंट को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी करता है. ट्रू और नॉट? कमरे में आप मान लो एक रूम में एंटर करते हो, ठीक है, एंड वेदर जो है वो गर्मी का है, तो एक इंटेलिजेंट बंदा है वो क्या करेगा? क्या बैठा अडेप्ट करता रहेगा गर्मी के साथ? No, ma'am. No, ma'am. नहीं, क्या करेगा? They're finding solution for that situation. एग्जैक्टली एक इंटेलिजेंट इंसान अपनी सिचुएशन को चेंज भी करेगा, उसको मॉडिफाई भी करेगा अकॉर्डिंग टू हिज कंफर्ट, अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस. ओके, जो ये कह रहा था, कहाँ गया? वेशलर कह रहा था डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट. तो डील इफेक्टिवली में मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट इज आल्सो अ फैक्टर. मेक सेंस? दिस इज समथिंग दैट वाज गिवन बाय गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग. ओके, these are my like favorite parts. आपको समझ आया? Yes, ma'am. Ma'am, तीनों definitions clear हो गई अच्छे से? If you will give just 1 or 2 readings after this class, I'm very sure that आपको दोबारा ये definitions कभी भी life में learn करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ma'am, I'll explain you every term properly. समझ आया अच्छे से? Yes, ma'am. I have a doubt. Okay. Yes. Ma'am, like अगर exam में intelligence का definition आता है, तो which one should we write? Like if it comes for 2 marks or something. 2 marks के लिए आता है तो आई सजेस्ट कि आप पहले ना उसका एक मीनिंग दे दो, एक जनरल मीनिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में. उसके बाद यू गिव वेशलर्स डेफिनेशन. वेशलर की डेफिनेशन इज द बेस्ट डेफिनेशन. ओके, एंड अगर सिर्फ डिफाइन का आता है तो जनरली अगर डेफिनेशन के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, सो यू शुड बी गिविंग एग्जांपल्स आल्सो. बट इसमें इट इज नॉट रिक्वायर्ड, यू गिव वेशलर्स डेफिनेशन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है. मैम एग्जांपल तो इसमें क्या देंगे like intelligence का? इसमें आप एग्जांपल दोगे तो आई थिंक यू विल एक्सीड द वर्ड लिमिट, इजंट इट? Yeah. So I think according to me you should stick to the this definition. But if you want to give example, that example is very good. Learning का chapter भी पढ़ा होगा ना आपने? If not then you can make any example. कोई भी अच्छा सा example you can make up. Every human being, a man who goes to his job daily, he is acting purposefully. आप उसमें bracket में लिख सकते हो. And he is thinking rationally that he has to provide his environment, and whatever issues he is facing in his work environment, he is dealing effectively with that. Okay. So a person going to the job, and when you will be writing this, आप proper उसको bracket में लिखो कि यहाँ पे. Is my voice echoing? Yeah, ma'am, it's okay. Yeah. Okay. तो आप उसको ब्रैकेट में लिखो कि इस पॉइंट पे ही इज थिंकिंग रैशनली, कि ही इज थिंकिंग रैशनली दैट ही हैज टू प्रोवाइड प्रॉपर थिंग्स टू हिज फैमिली. देन ही इज एक्टिंग पर्पसफुली बाय गोइंग टू द ऑफिस. ही इज डीलिंग इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम इन द ऑफिस बाय हिज कलीग्स और बाय हिज बॉस. ओके, Okay. so if you write that way, it will be a very good impression to the teacher. आप लिख के मुझे भेज भी सकते हो and I will review it. Okay? Okay. Okay. All right. Theories of intelligence. Finally, मुझे लगा था हम 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, but okay, it's going slow. We have a class tomorrow as well, by the way. So today we will be doing 3 to 4 theories and rest tomorrow. Yes, ma'am. Tomorrow what? मतलब as much as you can process today. Pardon? Tomorrow at what time will be class? Same time. Same? Either 5 to 7 or 6 to 8. I'll let you know. Okay, okay. Okay. So theories of intelligence में 2 तरीके की approaches आती हैं. You need to make a note here. Okay. कि 2 approaches हैं, इनको समझना. I think if you will study directly, maybe it doesn't make any sense to you कि psychometric approaches क्या है, information processing approaches.
क्या है, but by the word itself it is very much clear. So when I say psycho, हमने पढ़ा हुआ है ना psycho का क्या मतलब होता है. Psycho, guys, come on, which subject are we studying? Ma'am, mind. Brain. ठीक है. Psycho means psychology, okay? Psychology से related. Metric का क्या मतलब है? लिख लो, नहीं आता तो लिख लो, अगर आता तो मुझे बताओ. You can guess. There is nothing right or wrong. Measures. हाँ, measure. Psychology and measure. So measurements of psychological attributes, जिसमें हम चीजों को measure करते हैं कि what they are, है ना. This is what we do in most of our tests. हम क्या करते हैं, measure करते हैं, psychometric techniques को use करते हैं. So the first approach towards theories of intelligence is psychometric approach, जिसमें हम we study the, we measure the abilities. Keyword here is abilities. Please write it down. It is very difficult to write with mouse. तो आप कहीं भी note it down. And second keyword is it measures what. कौन सी abilities है एक person के बीच में. That is what is studied by psychometric approach. तो दो तरीके की theories आप पूरी theories of intelligence में पढ़ोगे, जो कि बहुत सारी theories हैं. एक जो फर्स्ट टाइप ऑफ थियरीज है वो आपको क्या बताएंगी, दे विल हैव अ साइकोमेट्रिक अप्रोच. कौन सी एबिलिटीज ऑलरेडी एक बंदे के बीच में है, एक पर्सन के बीच में है, विच क्वालिफाई हिम एज एन इंटेलिजेंट बीइंग. दोज आर साइकोमेट्रिक अप्रोचेस. ओके, what are the abilities, what are the capacities between an individual being which qualify him, which make him an intelligent human being. Okay, the second type of approach is information processing approach. Okay, so for example एक बहुत ही lame सा example ले लेते हैं कि when you have to cook something, है ना, खाना बनाना होता है, तो हम दो तरीके हैं. How do I define this thing कि कैसे खाना बनाते हैं. एक तो है मैं आपको बोलूं कि अच्छा आपको दाल बनानी है, तो दाल में प्याज डाल दो, दाल डाल दो, पानी डाल दो, put all the spices and दाल बन जाएगी. ठीक है, ये साइकोमेट्रिक अप्रोच की अप्रोच है. इट इज टेलिंग यू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दाल और एनीथिंग व्हिच यू लाइक टू ईट. ओके, व्हाट आर द थिंग्स जो दाल में डलती हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट इंटेलिजेंस हैज. ओके, सेकंड अप्रोच इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. दाल बनती कैसे है, पहले क्या करोगे आप. ओके, मुझे बनानी नहीं आती है, बट आई एम टेलिंग यू अ वेग प्रोसीजर. ठीक है, तो आप उसको पहले बॉईल करो, आप पानी डालो, दाल डालो, एंड यू बॉईल इट ऑन वन फ्लेम. ऑन द अदर फ्लेम आप तड़का लगाओ प्रॉपरली, उसमें अनियंस डालो, टमेटोज डालो, उसको फ्राई करो अच्छे से. देन आप दोनों को मिक्स कर दो. जब आप मिक्स कर दोगे तो उसका जो एंड प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, दैट विल बी योर दाल. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो मैंने आपको बताई वो आपके इंग्रेडिएंट्स थे. अब उन इंग्रेडिएंट्स को प्रोसेस कैसे करते हो, दैट इज व्हाट योर इंफॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच टेल्स यू, विच इज कि दाल बनानी कैसे है, इंटेलिजेंट लोग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं. मेक सेंस, समझ आया. Yes. Yes, ma'am. Ma'am, please, So now please you- can you explain it again? Okay, I can explain it again. Yeah, thank you. Same example से समझा दूं. Yeah. Okay, so psychometric approach is doing what? It is measuring your psychological attributes. Measure कर रहा है, ठीक है, कि अगर आपको दाल बनानी है तो आपको उसमें 1 cup of दाल. ये क्या हुआ? Is my screen still being No, shared? ma'am, no, it's not visible. No. Okay, now Yeah. Yes, is my screen visible? Okay, Yes. okay. तो अगर मुझे दाल बनानी है तो साइकोमेट्रिक अप्रोच की क्या अप्रोच है कि what are the ingredients that I will be putting in this. So psychometric approach is answering what. It is telling me about the abilities that that intelligent people have. Abilities. ठीक है, Okay. दाल में इंग्रेडिएंट्स क्या डालेंगे वो हमें कौन बता रहा है, साइकोमेट्रिक अप्रोच. इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग में एबिलिटीज क्या है, दैट इज बीइंग टोल्ड बाय साइकोमेट्रिक अप्रोच. मेक सेंस. Yeah. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है प्रोसीजर. प्रोसेसिंग का प्रोसीजर क्या है, दाल बनानी कैसे है, हाउ.
हाउ का आंसर कौन दे रहा है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. दिस वाज आंसरिंग व्हाट, दिस इज आंसरिंग हाउ. एंड इट इज टेलिंग Okay. अस द कंप्लीट टेक्निक कि हमारे दिमाग में, एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग के दिमाग में इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है. Okay, now it's clear. Thank you. ओके, यू वेलकम. ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं. अब जितनी भी थ्योरीज आएंगी, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल एक्चुअली एंजॉय स्टडीइंग इट. And we'll have a lot of examples, so many things that we'll be able to relate in our daily life. I'll also give you tips and tricks कि इतनी tough theories जिसमें इतने सारे factors उन लोगों ने दिए हुए हैं, उनको हमने learn कैसे करना है. Okay? जैसे हमने definitions learn करी, वैसे ही हम फटाफट theories भी learn, तो अच्छे से समझ कर लेंगे. Okay, so सबसे पहले अल्फ्रेड बिने नहीं आए, सबसे पहले बहुत सारे लोग आए. ठीक है, बहुत सारे philosophers थे जिन्होंने, I'll give you some extra things. ठीक है, पहले एरिस्टोटल और प्लेटो आए, उन्होंने इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी. फिर एक्विनाज आए, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज द पावर टू कंबाइन एंड एंड सेपरेट. फिर डार्विन आए. सबसे पहला जो इंटेलिजेंस का टेस्ट बना था, दीज थिंग्स आर नॉट इन योर एनसीईआरटी, दैट्स आई एम जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड, अ फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ऑफ की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहाँ से ओरिजिनेट हुई. सो इट इज ऑफ द टाइम्स ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो हु वर ग्रीक फिलोसोफर्स. ठीक है, फिर डार्विन आए. फिर सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट बना था, इट वाज नॉट बाय अल्फ्रेड बिने. अल्फ्रेड बिने का तो वो है जो हम पढ़ते हैं ना. तो सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, डू यू गाइस नो क्या था पुराने जमाने का इंटेलिजेंस टेस्ट? वी आल्सो डू इट्स एक्सपेरिमेंट इन आवर लैब. कैन यू गेस? एनी गेसेस? यस और नो? No. No, yeah. अच्छा, सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट बना था, इट वाज रिएक्शन टाइम टेस्ट. रिएक्शन टाइम टेस्ट क्या मेजर करता है? कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करते हो, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, है ना. सो उस जमाने का सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट वाज रिएक्शन टाइम टेस्ट. ठीक है, दिस वाज लाइक द फर्स्ट कॉग्निटिव असेसमेंट जो हमें गैल्टन ने दी थी. अच्छा, फिर कटेल आए, फिर बिने आए, और फिर अभी हम बिने को पढ़ने लगे. अल्फ्रेड बिने, हु गेव हिज थ्योरी इन 1905, और जिन्होंने, ही वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु ट्राइड टू फॉर्मलाइज द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ मेंटल ऑपरेशंस, कि मेंटल ऑपरेशंस की फॉर्म में कैसे होता है. तो इन्होंने तो सबसे सिंपल डेफिनेशन दी. स्टार्टिंग में चीजें आर वेरी सिंपल. ओके, तो बहुत सिंपल इजी सी डेफिनेशन इन्होंने कहा, इंटेलिजेंस इज वन फैक्टर और यूनिफैक्टर थ्योरी. ठीक है, इनकी थ्योरी को कहते हैं. ही सेड इंटेलिजेंस, he conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in individual environment. So it is like a layman's definition of intelligence, but he was the first one जिसने intelligence के बारे में मतलब बात करी in terms of mental operations. इन्होंने कहा कि सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज है. जैसे हम कहते हैं ना कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है क्लास में, मतलब कि वो इंटेलिजेंट है तो वो हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंस है, और मतलब इंटेलिजेंस इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, उसमें बहुत सारी एबिलिटीज है. ठीक है, तो इन्होंने सिंपल यही बोला. ही सेड दैट इंटेलिजेंस जो है, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज. ठीक है, this is what intelligence consisted of according to Binet. It consists of similar set of abilities, और उन सेट ऑफ एबिलिटीज को आप लाइफ की, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, समझ आया? यूनिफैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर मतलब वन ही फैक्टर दिया. इन्होंने कहा वन फैक्टर वो क्या है? इट इज द सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज. सबके अंदर सेम ही एबिलिटी है. जो भी इंटेलिजेंस बंदे को भी हम इंटेलिजेंट बोलेंगे, उसमें कुछ सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज होंगी. हर इंटेलिजेंट बंदे के अंदर उसी तरीके की एबिलिटीज होती हैं जिसको वो यूज करता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. Okay. डज दैट मेक सेंस, या दोबारा रिपीट करूं? Should I repeat it or is it clear? Repeat one more time. Okay, तो इन्होंने क्या बोला? He said he gave one factor theory of intelligence. One factor, वो one factor क्या है कि हर इंटेलिजेंट पर्सन, चाहे अब ये वर्षा है, ठीक है, और ये है कंगन है,
ठीक है, ये दोनों बच्चे अच्छे हैं और एक पूजा भी है, ये तीनों बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों बच्चे क्लास में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बिने, वर्षा में, कंगन में और पूजा में, तीनों में दे हैव सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज, ठीक है, क्योंकि तीनों इंटेलिजेंट हैं, तीनों में एक ही तरह की एबिलिटीज हैं, और तीनों इन एबिलिटीज को किस चीज में यूज करते हैं? अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? According to Alfred Binet, intelligence consists of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in individual's environment. Simple, easy, clear? Yes, ma'am, understood. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो इन्होंने सिर्फ वन फैक्टर दिया, बहुत इजी थ्योरी दी जो शायद एग्जाम में आएगी, ठीक है, बिकॉज वी हैव सो मच टफर थ्योरीज टू स्टडी। ओके, फिर आए चार्ल्स स्पेयरमैन इन 1927, ठीक है, इन्होंने क्या दी? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी, जो आपने शायद पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी तो हम अभी पढ़ लेते हैं। ही गेव टू फैक्टर्स। इन्होंने कहा कि एक ही तरह की एबिलिटीज नहीं होती, दो तरह की एबिलिटीज होती हैं। एक होता है जनरल फैक्टर, जिसके बारे में अल्फ्रेड बिने ने भी बात करी कि हर इंटेलिजेंट के पर्सन के अंदर सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो जनरल फैक्टर मतलब जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उन सब के अंदर एक जनरल एबिलिटी तो होगी ही, है ना। आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो तो पहला पेपर जनरल पेपर होता है कि आप लोग एक्चुअल में इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, है ना। डू यू गाइस नो अबाउट यूजीसी नेट एग्जाम? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. है ना। तो एक जनरल पेपर होता है, हम चेक करते हैं कि अच्छा इस बच्चे में एबिलिटी है भी कि नहीं है पढ़ाने की, लॉजिकल रीजनिंग उसमें चेक करते हैं, आप टीचिंग एप्ट चेक करते हैं। इफ यू वांट टू क्वालिफाई एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बेसिक चीजें समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। देन सेकंड टेस्ट कौन सा होता है? Specific factor. हाँ, स्पेसिफिक फैक्टर्स। स्पेसिफिक फैक्टर मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में या डोमेन में जिसमें ये लोग इंटेलिजेंस को अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज योर सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एबिलिटी, ठीक है। जनरल फैक्टर जो कि हर इंटेलिजेंट पर्सन के बीच में होगा, बट हर इंटेलिजेंट पर्सन हर कोई जो है इंटेलिजेंस को एक ही तरीके से इस्तेमाल तो नहीं ना करेगा। कोई इंटेलिजेंट पर्सन इंजीनियर बन सकता है, कोई इंटेलिजेंट पर्सन डॉक्टर बन सकता है, कोई म्यूजिशियन बन सकता है, कोई स्पोर्ट्स में जा सकता है, इजंट इट? तो किस एरिया में उसकी इंटेलिजेंस है, दैट इज योर स्पेसिफिक फैक्टर। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. थोड़ा और इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, विच इज नॉट इन योर एनसीईआरटी। तो जो जनरल फैक्टर है वो कहते हैं कि इट इज इनेट इन अ पर्सन, यूनिवर्सल है, ठीक है, सब में है, एंड इट इज इनेट इन नेचर। Everyone has some or the other amount of general factor, G factor. G stands for general, S stands for specific. पर जो specific factors हैं, those are the learned factors, जो हमने सीखे हैं, those are not innate. Okay? General factors are the innate factors, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, but specific factors they are the learned factors. तो specific factors लाइक वी ऑलरेडी स्टडीड, है ना, कि साइंटिस्ट में अलग हो सकते हैं, एथलीट में अलग हो सकते हैं, आर्किटेक्ट्स में अलग हो सकते हैं। ओके, दिस वाज गिवन बाय चार्ल्स स्पेयरमैन। आप आगे जाके एक और थ्योरी करोगे जिसमें हम सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेयरमैन और स्टर्नबर्ग ने। तो स्पेयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी 1927 में, स्टर्नबर्ग ने नहीं दी, और स्टर्नबर्ग ने 1927 में भी नहीं दी, स्टर्नबर्ग बाद में आए थे। ओके, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करी जो हम अभी लर्न करके जाएंगे, ठीक है। किसने बात करी? मैम लुइस थर्स्टन। यस, थर्स्टन ने कहा कि भाई 2 तरीके की इंटेलिजेंस नहीं होती, 7 तरीके की होती है। ओके, सबसे पहले कौन आया? बिने आया 1905 में। ही सेड कि एक ही तरीके की इंटेलिजेंस होती है विच मेक्स एवरी इंडिविजुअल बीइंग इन दिस वर्ल्ड इंटेलिजेंट, और अपने इंटेलिजेंस के तरीके से वो लोग अपनी एनवायरनमेंट के साथ डील कर लेते हैं। फिर आए चार्ल्स स्पेयरमैन इन 1927, जिन्होंने कहा भाई एक तरीके की इंटेलिजेंस नहीं होती, 2 तरीके की इंटेलिजेंस होती है। एक जनरल होती है जो सबके अंदर होती है, इनेट होती है, और दूसरी जो वो बंदे जिस फील्ड में अपनी इंटेलिजेंस अप्लाई कर लेते हैं या जो चीज सीख लेते हैं
वो स्पेसिफिक फैक्टर होता है, स्पेसिफिक फैक्टर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है। फिर थर्स्टन आए, इन्होंने कहा कि भाई एक तरीके की भी नहीं होती, दो तरीके की भी नहीं होती, 7 प्राइमरी एबिलिटीज होती है। ओके, इसका ईयर इसमें मेंशन नहीं है, आई वुड हैव रिटन, रुको मैं बताती हूँ किस ईयर में होती है। थर्स्टन gave this theory in 1938, you guys can note it down। ठीक है, 1938 में इन्होंने दी 7 प्राइमरी एबिलिटीज। प्राइमरी, व्हेन आई से द वर्ड प्राइमरी, मतलब कि जो बेसिक एबिलिटीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी। तो इन्होंने 7 टाइप्स ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज दी। पहली एबिलिटी इज वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्ड फ्लुएंसी, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कि कोई भी चीज जो आपको बताई जा रही है, कोई भी वर्ड है या कोई भी लैंग्वेज है, आप उसको कितने अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करते हो या अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग समथिंग इज व्हाट, योर कॉम्प्रीहेंशन, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड। एग्जाम्स में आते थे ना 9th 10th में, 10th तक हम करते रहे कॉम्प्रीहेंशन। Yes, yes. Why Paragraph. did they used to give you such big paragraphs? हाँ, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स। They wanted to know कि बच्चा सिर्फ क्रैक ही करता है या उसको एक्चुअल में इंग्लिश समझ में भी आती है, या हिंदी पंजाबी कोई लैंग्वेज समझ में भी आती है। तो इस वजह से वो आपको थोड़ा सा पैराग्राफ दे देते थे कि ये बच्चा जो है इसको पढ़ के, इसको समझ के हमें बताए कि उसको क्या समझ में आया थ्रू आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। So first type of ability that Louis Thurston talked about in 1938 is, what is it? Verbal comprehension। ठीक है, सेकेंड थिंग दैट ही टॉक्ड अबाउट, ये मैंने बहुत अच्छे से आपके लिखे हुए हैं, ये देखो, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन और वर्ड फ्लुएंसी को आप अच्छे इकट्ठे लर्न करोगे क्योंकि बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज मोस्टली। फिर सेकेंड थिंग इज वर्ड फ्लुएंसी। अब वो पर्सन जो है वो कितने फ्लुएंटली, कितने फ्लेक्सिबली जो है वर्ड्स को यूज कर पाते हैं। ठीक है, दिस इज मोर रिलेटेड टू योर वोकैबुलरी, वर्ड फ्लुएंसी। Okay, how fluently are you able to use the words, how flexibly are you able to use the words, आपकी जो vocabulary के बारे में बात होती है, that is your word fluency। Both of these things are different, है ना? Comprehension is understanding something that is already given to you, word fluency is using the words। Okay, समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, so these are the first 2 primary abilities, V and double V, single V, double V, W, है ना? ठीक है, सेकेंड इज, थर्ड टाइप इज न्यूमेरिकल एबिलिटीज। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज उन बच्चों में होती है जिनसे हम क्लास में डरते हैं, जिनके मैथ्स में 50 में से 50, 100 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, व्हाई? बिकॉज दे आर सो गुड विद नंबर्स। ओके, सो आप कितने एक्यूरेट, what is your accuracy in numerical and computational skills, that is told by your numerical abilities. How good are you with numbers, numerical numbers? Okay, then there are spatial relationships। स्पेशल रिलेशंस होते हैं फॉर्म्स के साथ, पैटर्न्स के साथ, फिगर्स के साथ, आप कितने अच्छे हो। ठीक है, स्पेशल रिलेशंस, इस तरीके की एबिलिटीज मैक्सिमम कैसे लोगों में होती है? स्पेशल, यहाँ पे ये जो वर्ड डिराइव हुआ, इट इज डिराइव फ्रॉम स्पेस, है ना? जब भी हम अपना घर बनाते हैं, हम किसको, यस, वेरी गुड, पायलट्स, एस्ट्रोनॉट्स, आर्किटेक्ट्स, इन सब के अंदर क्या होती है? स्पेशल एबिलिटी होती है। दे नो कि स्पेस को हाउ डू वी हैव टू एक्चुअली जज इट। तो जरूरी नहीं है कि जो स्काई में जाते हैं वो वाली स्पेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जनरल स्पेस की बात कर रही हूँ। सो अ पर्सन हु विल हैव अ गुड स्पेशल एबिलिटी, वो अपने कमरे में बहुत सारी स्पेस बना पाएगा। ही वुड नो कि चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है, जस्ट द वे आर्किटेक्ट्स डू, इजंट इट? दे नो कि रूम्स को किस तरीके से बनाना है, so that everything that you have वो सारा कुछ एडजस्ट भी हो जाए, इतनी सारी स्पेस भी बन जाए, and even then your room looks so beautiful। Have you guys seen आजकल जैसे घर बनते हैं, architects they are so intelligent। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, टाइनी हाउसेस में भी देखो वो कितना सब कुछ अकोमोडेट कर लेते हैं। टाइनी हाउस वाज माय फेवरेट शो, आई यूज्ड टू वॉच इट। है ना? इट्स सो गुड हाउ कितना प्रिसाइजली वो अपने घरों को बना लेते हैं। सो दोस पीपल दे हैव स्पेशल रिलेशंस। ठीक है, उनके दे कैन क्रिएट स्पेस हियर इन मेंटल हेड।
तो उनको पता है कि चीजों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है. ओके, सो वी स्टडीड वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्ड फ्लुएंसी, और इन तीनों का हम इकट्ठे लर्न करेंगे, इन दोनों को भी, न्यूमेरिकल एंड स्पेशल रिलेशंस. ठीक है, टफ वाले पार्ट्स. ओके, देन वी हैव परसेप्चुअल स्पीड. हम चीजों को कितनी जल्दी परसीव कर पाते हैं, दैट इज बाय आवर परसेप्चुअल स्पीड, है ना. रिएक्शन टाइम की जैसे हमने बात करी. हाउ क्विकली आर यू एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, कॉम्प्रिहेंड थिंग्स, कितनी स्पीड है आपकी टू परसीव द थिंग्स एंड मेक मीनिंग आउट ऑफ देम. ओके, परसेप्चुअल स्पीड इज प्रोबेबली इन हमारी हिंदी मूवीज के जो हीरोज होते हैं ना, उनमें बहुत परसेप्चुअल स्पीड होती है व्हेन दे आर इनटू फाइटिंग. They can फटाफट सी कि हाँ पीछे से somebody is attacking me. So they have a good perceptual speed. Okay. Then we have memory, है ना. How good are we in recalling information? And inductive reasoning. तो these two are a little bit related. इन तीनों को आप इकट्ठे लर्न कर सकते हैं. NSP, V and double V, SP, spatial and perceptual. Then we have numerical, M is for memory, N is for your numerical abilities. I is Ma'am, your voice is breaking. okay, ma'am. Is it better now? No, ma'am, same. Okay, now. Ma'am, it's not audible. Yeah, now should I change my network Yes, connection or yes, is it yes. better? Now it's coming. Now it's better. Okay, all right. ठीक है, तो इसको आप ऐसे निमोनिक्स बना लो. V and double V, फर्स्ट प्राइमरी एबिलिटी. SP, ठीक है, SPPS जैसे भी आपको इसको लर्न करना है. एंड देन वी हैव MN, एंड लास्ट जो बच जाता है सेवंथ वाले में, दैट इज I, मी, मैं, माइन, जो भी जैसे भी. ठीक है, I is inductive reasoning. Inductive reasoning और deductive reasoning, okay, I can tell you what it is. Inductive reasoning में क्या करते हैं हम, specific thing to general, specific to general जाते हैं, है ना. Correct. For example, कि मम्मा ने आपको एक बार बोला for one thing कि अपने बर्तन जो हैं आप अपने सिंक में रखा करो, या फिर कीप योर कप इनसाइड द किचन, और अपने कप को ऐसे ही रूम में मत रखो. ठीक है, सो व्हाट डू यू डू कि आप, दैट वाज अबाउट अ स्पेसिफिक कंसेप्ट, और आपने उसको जनरलाइज कर दिया टू ऑल द अदर थिंग्स. या आपके साथ एक बार कोई एक इंसिडेंट हुआ कि वन डॉग प्रोबेबली ही बार्क्ड एट यू वेरी बैडली, और आप डर गए, तो आपने जनरलाइज कर लिया कि हर डॉग जो है डरावना होता है, गंदा होता है. That is inductive reasoning. When you go from specific thing, कोई एक इंसिडेंट से आप बाकी सारे इंसिडेंट्स में उस चीज को क्या कर लेते हो, जनरलाइज कर देते हो. Does that make sense? Yes, ma'am. Yes, ma'am. General specific. ठीक है, समझ आ गया. Okay, so इसको नोट कर लो. V and W, S and P, M and I. हम इसका थोड़ा बेटर निमोनिक में विल ट्राई, है ना, अपने ग्रुप में विल ट्राई एंड पुट इट अप. अगर किसी को मिलेगा, so do tell, okay? Ma'am, can we do it Yes. as double V, NSP and then MI? हाँ, जैसे मर्जी कर लो. That's also good. कुछ वर्ड्स भी बना सकते हैं इसके. I'll think about it and I'll get back to you guys. Okay. So सबसे पहले हमने कौन सी थियोरी पढ़ी? One factor theory. One factor 1905. किसने दी थी? Banana. Very good. Okay. उसके बाद क्या पढ़ा? Factor theory. किसने दी थी? Charles Spearman. कब दी थी? 1927. Very good. Okay. कौन से दो फैक्टर्स थे? General and specific. ठीक है. थर्ड थियोरी का क्या नाम था? Primary Mental abilities. किसने दी थी? Lewis Lewis Thurston, 1938. 38. Very good. Okay. और कौन सी 7 एबिलिटीज थी?
Ma'am, verbal verbal comprehension, word fluency, numerical abilities, spatial relations, and inductive perceptual reasoning. speed, memory, and inductive reasoning. ओके, बाकी सबको भी याद हो गया? एक भूल गए आप? Ma'am, I told all the 7. सारी बता दी? अच्छा, परसेप्चुअल स्पीड यू मेंशनड? Yes, Nine. ma'am. I guess 9. अच्छा चलो, Yeah, I चलो ठीक mentioned है, all. ओके ठीक है, मतलब याद हो गया है ना? 3 थियरीज हमने अच्छे से लर्न कर ली। अब एक लास्ट कर ले। Yes, वैसे ma'am. 2 है, आई वांट टू एक्सप्लेन 2, जैसे आप बोलो। एक करें या दोनों कर लें? दोनों कर लेता। कर ले, इट्स इंटरेस्टिंग। मैम किसी को भूख तो नहीं लगी? इसके बाद और कितना है? कंगन, यू आर नॉट ऑडिबल। मैम इसके बाद और कितने बाकी है स्लाइड्स? बस 2 स्लाइड्स रहती हैं, 2 थियरीज। द चैप्टर इज कंप्लीटेड। Ma'am, प्रॉपर please लर्न करवा करवानी है दीजिए मैंने दोनों। क्लास में। करवा ओके दूं? हाँ करवा दूं? ठीक है, सिर्फ 2 ही थियरीज हैं। ओके, नेक्स्ट इज हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये किसने दिया था? आर्थर जेनसन ने। ये भी नहीं लिखा हुआ इन्होंने कि कब दिया था। ओके, लेट मी सी, डू आई हैव इट? कैन समबडी गूगल कब दिया था? तो मैंने भी नहीं लिखा हुआ कब दिया था। चलो, आप सबकी परसेप्चुअल स्पीड चेक कर रही हूँ मैं, फटाफट बताओ। 1969. पक्का? Yes, ma'am. चलो ठीक है, ओके। सो नोटेड डाउन, इट वाज गिवन बाय आर्थर जेनसन इन 1969। मैं भी लिख लेती हूँ। ओके, इन्होंने कहा कि 2 तरीके के, ही गिव अ हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, कि जैसे छोटा बच्चा होता है। सो हायरार्किकल मॉडल, हायरार्की भी कोई बड़ी नहीं दी, बहुत छोटी सी हायरार्की दी। व्हेन वी टॉक अबाउट हायरार्की, डू वी अंडरस्टैंड हायरार्की क्या होता है? Yes, level 1. छोटे से बड़ा। हाँ, जैसे हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे, फिर इट्स गोइंग इन हायरार्की, है ना? फिर हम आए, फिर हमारे किड्स, देन हमारे ग्रेट ग्रैंड किड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे। ठीक है, दिस इज अ हायरार्की दैट इज गोइंग ऑन। ओके, फैमिली हायरार्की पढ़ा होगा हमने। सो जो एक Yes, ma'am. सीरियल ऑर्डर में चीजें चलती हैं, है ना, दैट इज हायरार्किकल। मैस्लो की नीड हायरार्की मॉडल वो देता है ना, ऐसे कि सबसे पहले आपकी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी, फिर आपकी सेफ्टी Psychological नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ Yes. एस्टीम, और ये सब कुछ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। self-actualization. ठीक है, Yeah. हाँ। तो एक हायरार्की में मतलब स्टेप बाय स्टेप, आप पहले लैडर का फर्स्ट स्टेप चढ़ोगे, तभी आप दूसरे स्टेप पे आओगे ना। यू कांट स्किप एनी स्टेप, दैट इज हाउ यू विल रीच सेफली एंड साउंडली। तो आर्थर जेनसन ने 1969 में, हम शुरू कहां से हुए थे? 1905 से। 5. ठीक है, फिर 1927, फिर 1938, और अब हम आ गए हैं 1969। इजी है लर्न करना, है ना? अब तो हम इतनी बार बोल चुके हैं, तो हमें लर्न ही हो गया होगा सारा कुछ यहाँ तक तो, Yes, ma'am. है ना? ठीक है, तो लेवल 1 में उन्होंने किस चीज की बात करी? एसोसिएटिव लर्निंग की, कि छोटे होते हैं, जो छोटा बच्चा होता है, ही लर्न्स इट थ्रू एसोसिएटिव लर्निंग, या फिर हम लोग भी कुछ चीजों को एसोसिएटिव लर्निंग के थ्रू लर्न करते हैं, जिसमें इनपुट और आउटपुट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, जब हम चीजों को एसोसिएट करके लर्न करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोट लर्निंग, तो आप कोई भी चीज का जब रट्टा मारते हो, तो व्हेन यू आर जो भी आप इनपुट दे रहे हो, रट्टा मार रहे हो, उसका आउटपुट ऑलमोस्ट सेम होता है। एग्जाम में वही लिख के पाते हो, अपनी तरफ से तेरे कुछ नहीं बना पाते हो। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, yes. है ना? तो व्हेन यू आर क्रैमिंग द थिंग्स, जो आपका इनपुट है और आउटपुट है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, और उसमें कुछ भी नया, कुछ एडिशन नहीं आती है। दैट इज योर एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है, मेक सेंस? When Yes, your ma'am. input and output are almost similar, that is called associative learning. कि input और output, they are completely associated with each other.
दे आर सिमिलर टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल इन रोड लर्निंग, या फिर जो चीजें हमारी मेमोरी के अंदर है वो एज इट इज ही आएंगी, ठीक है, जिनको हमने लर्न करा है. फॉर एग्जाम्पल अनदर टाइप ऑफ थिंकिंग इज जो हम यूज करते हैं स्टेटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, या फिर रियल लाइफ सिचुएशंस में, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस. कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में क्या है, यू आर यूजिंग योर ब्रेन. आपका दिमाग कितना कॉम्पिटिटिव है, दैट इज नोन इन योर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, दैट इज लेवल 2. पहले बच्चा लेवल 1 से शुरू करता है ना. पहले बच्चा क्या करेगा, टेबल्स लर्न करेगा, करेक्ट. 2 2s are 4 ही होगा. कभी भी आप 2 2s are 5 तो नहीं बोलोगे, बोलोगे? No, no, ma'am. नहीं, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में ऐसे ही, आपने उसको ऐसे ही लर्न करा हुआ है, ऐसे ही एसोसिएटिव लर्निंग के साथ लर्न करा हुआ है. बट व्हेन यू नो कि मैंने सारे 2 से लेके 20 तक टेबल्स लर्न कर लिए हैं, एंड देन समबडी आस्क मी कि 12 5 कितना होता है, तो आप बता सकते हो 12 5 60, और आपको कोई कम्प्लेक्स सम में दे देती हूँ, है ना. 12 into 5 plus 4 divided by 3, तो आप कर पाओगे, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? Yes, ma'am. कर Yes, ma'am. पाओगे, है ना. टीचर ने अगर आपको सिखा दिया, टीचर ने आपको बता दिया कि 20 + 20 बेटा 40 होता है. एग्जाम में अगर टीचर 10 + 30 भी बता देती है, आपको पूछ लेती है, तो आप उसको बता सकते हो. हाउ आर यू एबल टू टेल दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट ऑलरेडी देयर इन योर रोट लर्निंग? बाय यूजिंग योर हायर ऑर्डर स्किल्स, अपने दिमाग को यूज करके, चीजों को समझ के. ओके, सो अर्थर जेंसन ने 1969 में क्या बोला, ही सेड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग, 2 ways in which we learn things. पहले लेवल पे what we do, we just associate things and we learn those things. पहले लेवल पे टीचर हमें क्रैम कराते हैं कि आप सारे टेबल्स को लर्न कर लो, रट्टा मार लो. ओके, तभी वो ABC को भी तो हमें ऐसे ही क्रैम कराते हैं. We never Yes, jumble it. जैसे लर्न करा वैसे ही सेम रहता है. It's your rote learning, associative learning. But when you use that ABC to frame sentences, when you use that ABC or whatever words you have learned, your vocabulary, in forming beautiful essays, है ना, और in forming जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, to put it in your own words or to solve higher order questions, that is when you are using your cognitive competence, your higher order skills, which is level 2. Clear? तो Yes, इसमें ma'am. इनपुट और Yes, आउटपुट ma'am. एकदम सिमिलर नहीं होगा. इनपुट में हो सकता है टीचर ने आपको बेसिक सम 2-4 क्लास में करके दिखा दिया हो, बट जब आपकी टेस्टिंग फेज आएगा तो उसमें आपका आउटपुट वेरी कर सकता है. इट्स पॉसिबल कि जब आपने लर्न करी किसी चीज को अच्छे से समझ के, यहाँ पे हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस मैंने आप सबको समझाया, मैंने उसको रट्टा तो नहीं लगवाया, मैंने समझाया ना. तो व्हेन आई विल टेक योर टेस्ट, तो इट्स पॉसिबल कि हर बच्चा अपने हायर ऑर्डर स्किल्स यूज करके, अपने एग्जांपल्स यूज करके कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस और एसोसिएटिव लर्निंग को समझाने की कोशिश करे, राइट. वेयर एज अगर मैं आप सबको अच्छे से क्रैम करवाती हूँ, ये पिछला हमारा मॉडल थियोरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, अगर मैं इसको अच्छे से आपको लर्न कराती हूँ, तो आप इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल सकते हो. वर्ड फ्लुएंसी को लिंग्विस्टिक फ्लुएंसी नहीं लिख के आओगे पेपर में. कहाँ गए? Are you guys here? Yes, ma'am. Yes, we are. Yes, है ना, ma'am. आप नहीं लिख के आओगे ना, तो जो चीजें आपको लर्न करवाई गई हैं, that will remain as it is. So associative learning is the rote learning which is already there in your memory. Cognitive competence is when your input is not exactly similar to the output, rather it is being transformed by using your higher order skills, by using your cognitive competence to give an output. This is what Arthur Jensen said. He used a hierarchical model of intelligence. Very easy and simple. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody? कोई ऐसा जो, if you want me to repeat, I'll repeat it for you. कुछ भी नहीं समझ आया? No, ma'am, it's clear. Okay, good. ठीक है. तो अब तक हम 4 मॉडल्स कर चुके हैं. दिस इज आवर लास्ट मॉडल ऑफ द डे. बाकी मॉडल्स हम कल करेंगे, ठीक है. दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स मॉडल, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सो
1 or 2 questions are definitely asked from this Guilford's model. Okay, Guilford ने ये मॉडल कब दिया था? It was given in 1966. Okay, J.P. Guilford proposed the model of structure of intellect in 1966. हम पिछले में हमने 1969 पढ़ा है, but this model was given in 1966. So पहले हमने पढ़ा 1905 में एल्फ्रेड बिने ने हमें दिया वन फैक्टर थ्योरी. Then we studied Charles Spearman who gave his theory of two factors in 1927. उसके बाद क्या पढ़ा हमने 1938 में? कौन आया? Thornston. Louis Thurston. Yes, he gave theory of Two factor primary mental abilities. मैम primary mental ability. हाँ, टू फैक्टर तो 1927 में स्पेयरमैन ने दी ना. फिर हमने पढ़ा 1969 में हायरार्किकल थ्योरी दी. किसने दी? आर्थर जेंसन ने. Now we are studying a very very important model which was given by J.P. Guilford in 1966. कोई भी entrance exam में you will be asked questions from this model and make sure to understand this model very very nice. ठीक है. इन्होंने he talked about intellectual traits. हाँ जी. मैम ने चेक उसका ईयर, इस मॉडल का ईयर वो नेट पे 1955 शो कर रहा है. सो showing 1955. यस मैम. Okay, it's possible my resource is wrong. Let me Like, I also check. don't know 1955 or 66. एक मिनट देखते हैं. Because I've written in my notes it is 1966. It's possible I am wrong. Okay, 1955 में हो सकता है उसने दी हो, और 1966 में because this theory was revised 3 times. Because first one had 120 जो है, then 150, then 180, right? तो ठीक है, I'll confirm it and then we will learn its date. Okay, it's possible 166 में 1966 में इसका जो presentation जो हम study करते हैं with 180 attributes वो वाला दिया हो. Okay, तो अभी आप लोग ये चारों ही learn करो which are important. Okay, so structure of intellect model में we study about contents, operations and products. तो जेपी गिलफोर्ड ने he gave a structure of intellect model. इसको structure of intellect क्यों कहते हैं? Because इन्होंने actual में बोला कि intellect is, हमारी intellect जो है it is working, it is in the form of a structure. और वो structure कैसा है? That structure is in the form of a cube. Okay, so he said स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, इंटेलेक्ट मॉडल इसका नाम ही इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिया जो कि क्यूब की फॉर्म में था, जिसमें ही सेड देयर आर 4 कंटेंट्स. मान लो ये वाली साइड 4 है, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6. सो इन्होंने कहा कि हाउ डज आवर इंटेलेक्ट, इट किस तरीके का इंटेलेक्ट है हमारा. सो ही सेड इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब जिसमें 4 कंटेंट्स होते हैं जिनके ऊपर 5 ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं और वो 5 ऑपरेशंस मिलके 6 प्रोडक्ट्स बनाते हैं. 5 operations are performed on 4 contents to give 6 products. ठीक है, इसको हम और अच्छे से अब इसको डिटेल में समझते हैं. He talked about 4 contents. तो कंटेंट को आप समझ लो कि कंटेंट इज नथिंग बट अ स्टिमुलस. ओके, सो इनिशियली जब इन्होंने मॉडल दिया, सो दैट वाज 4 into 5 into 6. 4 5s are 20 and 25s are, sorry, 26 are 120. ठीक है. हाँ, so 120. Initially he gave 120 mental abilities, 120 factors. ठीक है, 120 factors दिए इन्होंने initially. पहले मॉडल में he said 4 contents, 5 operations are performed on 4
contents to give 6 products. मतलब कि पहले जो इनिशियली इन्होंने 4 तरीके के स्टिमुलस की बात करी, उन स्टिमुलस के ऊपर 5 तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे, 5 तरीके की प्रोसेसिंग होती थी, ठीक है, एंड 6 तरीके के प्रोडक्ट्स बनते थे विच वर आउटकम्स, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, इंटेलेक्ट के मॉडल की। दैट मीन्स कि ही सेड कि 4 तरीके की स्टिमुलस, 4 तरीके के कंटेंट्स। अब हमें स्टिमुलस एनवायरनमेंट में किस तरीके के मिलते हैं? वी गेट विजुअल स्टिमुलस, है ना, ऑडिटरी जो हम सुन सकते हैं, सिंबॉलिक जैसे लेटर की फॉर्म में हो गया, नंबर्स की फॉर्म में हो गया, सिमेंटिक वर्ड इज रिलेटेड विद मीनिंग्स, yes, words, meanings, and behaviors, एटीट्यूड हो गया, दूसरे पर्सन की नीड्स हो गई, ये सब चीजें। सो ही सेड ये 5 जो है, these 5 are the contents। ये मतलब बाद में रिवाइज होके what we are studying at present is 5 into 6 into 6 I think, नहीं, 5 into 5 into 6 which is 180। okay, तो इन्होंने कहा कि 5 तरीके के स्टिमुलस या 5 तरीके के कंटेंट हमें प्रोवाइड होता है। यू हैव टू लर्न इट एज COP, 4 contents initially, 5 operations, 6 products. So these 5 contents are what? Visual, auditory, symbolic, semantic, and behavioral. You might be asked these questions in your entrance exams कि किस कौन से contents, or they will give you options and they'll ask you इनमें से कौन सा content नहीं था। Okay, so we had Sorry, ma'am, you're not audible. okay, am I audible? can you try changing your connection maybe, because every 15 minutes there is a disturbance. Okay. 15 minutes. Let me see what can be done. Ma'am, it's better now. It's better. Okay. Yeah. Okay. All right. So there are 5 is visual, auditory, then we have symbolic content and semantic। S से आप learn कर सकते हो, ठीक है। Visual, auditory तो आपको normally ही याद रहेगा, ठीक है। And last one is behavioral, बिकॉज आप देखो कि हम दूसरे पर्सन के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली भी रिस्पॉन्ड करते हैं। The behavior of the other is being very nice to you, you might also behave very nicely. On the other hand, if somebody is very rude to you, it's showing your internet connection is unstable. If somebody is being very rude to you, you might, process that information in a different manner. Okay. Is that clear? Content समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके तो कई बार सिंबल्स को भी वी ऑल्सो प्रोसेस। सिंबल्स को जैसे हम मैथ्स में भी सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स कई बार इवन ऑन ट्रैफिक लाइट में भी तो हमें सिंबल्स ही दिखते हैं। Yes. सिमेंटिक इज रिलेटेड टू योर लैंग्वेज, ठीक है। सो दीज आर द कंटेंट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड टू अस। अब इन कंटेंट के ऊपर हम क्या करते हैं? ऑप्शंस। टू लर्न कंटेंट वी हैव VASSB। ओके अब इसको जो मर्जी बना लो, वट एवर यू लाइक, ठीक है। फॉर मी V इज वैशाली, A इज अरोड़ा, SSB पता नहीं। ओके SSD होता है ना, दैट वी एंटर। सो यू कैन मेक एनी निमोनिक दैट यू लाइक, कुछ ऐसे भी लर्न कर सकते हो आप। इसको भी आप ऐसे लर्न कर, UCR पहले, देन वी हैव STI। कैन यू गाइस सी इट? Yes, ma'am. अच्छा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती है, I'll be deleting this now so that I can explain rest of it। हम उसको यूजिंग आवर कॉग्निशन, यूजिंग आवर ब्रेन, हम उसको प्रोसेस करने की, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। वेदर इट इज मेंटल ऑपरेशंस, है ना, ऑपरेशन ऑफ थिंकिंग, ऑपरेशन ऑफ एनी सच थिंग, ठीक है। ऑपरेशंस वो मैथ्स में भी पढ़ते हैं ना, प्लस ऑपरेशन, माइनस ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, डिविजन ऑपरेशन।
वैसे ही जैसे जब हमारे दिमाग में हमें कोई भी स्टिमुलस, कोई भी कंटेंट मिलता है, तो हम उसके ऊपर 5 तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. पहला ऑपरेशन इज कॉग्निशन. कॉग्निशन में क्या आता है? Ma'am, our thinking, our ability to solve problem, our ability to make decisions. वेरी गुड. यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, ये सारा कुछ है ना हम करते हैं. हमारे सामने कोई भी आता है तो कुछ भी ऐसा आता है, अगर मैं आपको मान लो एक सिंबॉलिक प्रॉब्लम ही दे देती हूँ. सिंबॉलिक प्रॉब्लम में जैसे आप पेपर 1 में पढ़ते होगे, वो था पेरेंट का होता है कि दिस पर्सन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ दिस एंड देन ही इज मदर ऑफ दिस, फादर ऑफ दिस, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि ये बंदा क्या है, ABCD करके वो कर देते हैं. A is the father of this and C is the mother of this. पता है, करे हुए ये क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. You would have encountered. तो it is an example of your this symbolic thing. ठीक है, तो जब ये आपके सामने आता है तो आप क्या करते हो? You perform cognitive operation. You use your brain. You try to solve the problem. And then you go to your memory. अच्छा, मेरे टीचर ने मुझे इस तरीके से समझाया था कि अगर क्वेश्चन आता है तो लेट अस ड्रॉ इट दिस वे. इसको ये सिंबल दो, माइनस का सिंबल दे, एंड देन फाइनली ऐसे टेबल को ड्रॉ कर लो. यू गो टू योर मेमोरी. यस और नो? Yes. पढ़ाया था यूर मेमोरी, है ना? या फिर मम्मा ने मुझे बताया था कि अगर ऐसा, इफ यू आर गोइंग अलोन ऑन द रोड और कोई पर्सन, इफ somebody dial this particular number, you go to your memory and you fetch details, right? Then there is divergent and convergent production. divergent and मैंने आपको inductive reasoning और inductive reasoning अभी समझाई थी. there is divergent production. मतलब ने जिसने भी आपको पढ़ाया होगा उसने आपको 3 या 4 तरीके के सम समझा दिए होंगे, है ना? और आपने उसको क्या करा, आपने उसकी अलग अलग एप्लीकेशंस ढूंढ ली कि अच्छा यहाँ पे भी मैं इस सेम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकती हूँ, यहाँ पे भी कर सकती हूँ, यहाँ पे भी कर सकती हूँ. ठीक है. एंड कन्वर्जेंट में व्हाट यू डू, कन्वर्जेंट में यू गो फ्रॉम स्पेसिफिक्स टू जनरल. मान लो आप बहुत सुंदर कोई ऐसे लिख रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप गूगल की अलग अलग वेबसाइट्स पे जाओगे, यू विल सर्च थिंग्स रिलेटेड टू योर टॉपिक and then try to construct a very nice one essay. You will converge all those things. Converge is जब बहुत सारी चीजें मिलके combine होती हैं. C for converge, C for combine, है ना? And diverge is जब हम एक चीज को अलग अलग चीज टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. D for divide, D for divergent. तो कोई भी चीज जब हमारे सामने आती है, we do perform these operations, right? Yes or no? Yes. Yes, है ना? ma'am. ठीक है. हाँ. एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन. तो आप जैसे यूज कर प्रोडक्शन, हर इवन आफ्टर सॉल्विंग अ पेपर यू ट्राई कि आई गो थ्रू एवरीथिंग और मैं एक बार रिवाइज कर लूं कि मेरे से तो नहीं कुछ छूट गया. इवन मान लो आपकी फ्रेंड के साथ आपकी लड़ाई हो गई, उसको भी आप इवैल्यूएट करते हो. आप किसी के बिहेवियर तक को इवैल्यूएट करते हो. मैथ्स का सम सॉल्व करोगे, उसको भी इवैल्यूएट करोगे. किसी से बात करोगे, अपने वर्ड्स को भी इवैल्यूएट कई बार करते हो, है ना? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, दिस इज ma'am. हाउ वी डू. हमारे कॉग्निशन में हम अपनी मेमोरी का यूज करते हैं, उसको यूज करके हम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रोडक्शन में जाते हैं एंड देन वी इवैल्यूएट. सो वी हैव 2 C's, 1 D, C, D, E, एंड देन फिर से क्या आ गया, M, me, my, mine, and all that. Make sense? Yes, ma'am. सबसे पहले कंटेंट्स आता है, फिर ऑपरेशन आता है. कई बार बहुत सिंपल ऐसे ही पूछ लेते हैं, आपको ऑर्डर ही पूछ लेंगे कि कंटेंट पहले आता है, ऑपरेशन पहले आता है या प्रोडक्ट्स पहले आता है. सो यू शुड नो इट इज COP. ठीक है. फिर अब पहले हमें स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस के ऊपर हमने प्रोसेसिंग करी, ऑपरेशंस परफॉर्म करे. अब हम आएंगे प्रोडक्ट्स पे कि जो भी हमने प्रोसेसिंग करी, जो भी हमने चीजें सॉल्व करी, उसका आउटकम क्या आया, किस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेस करा, दैट इज योर प्रोडक्ट्स. तो इट्स पॉसिबल आपने हर चीज को अलग अलग तरीके से ही एज यूनिट्स प्रोसेस करा. ठीक है.
या फिर इट इज पॉसिबल, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ कि सी और सी को इकट्ठा कर लो, डीएम को इकट्ठा कर लो, आपने चीजों की क्या बना दी, क्लासेस। पूरे क्लास में जो कुछ भी अभी तक आपने सीखा है, कुछ चीजों को आपने एज अ यूनिट्स ही लर्न करा होगा, है ना। सबसे पहले आपने लर्न करी एल्फ्रेड बिने की थ्योरी, आपने उसको एज अ यूनिट लर्न करा, सिंगल एंटिटी की तरह लर्न करा कि 1905 में बिने ने हमें आईक्यू का फर्स्ट टेस्ट दिया था, एज अ यूनिट लर्न करा। फिर जब मैंने आपको तीन चार पढ़ा दिए मॉडल्स, है ना, फिर आपने इसको एज अ हायरार्किकल ऑर्डर में एज अ क्लास बना के लर्न कर लिया, है ना। पहले 1905 आया, फिर 1927 आया, फिर 1938 आ गया, फिर हमने 1969 पढ़ लिया, है ना। तो आपने उसकी एक क्लास बना दी। फिर आपने चीजों को रिलेट करके भी पढ़ने की कोशिश करी कि पहले वन फैक्टर थ्योरी आई, उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, फिर वो कहता वन फैक्टर नहीं टू फैक्टर्स होते हैं ना, उसको उसके रिलेशन में पढ़ा कि जनरल तो चलो होता ही है, स्पेसिफिक भी होता है। फिर आपने थर्ड फैक्टर थ्योरी को भी रिलेट करा कि स्पेसिफिक में भी आगे 7 तरीके की कैटेगरीज होती हैं, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वर्ड फ्लुएंसी हो गया, स्पेशियल रिलेशंस हो गया, परसेप्चुअल हो गया, रीजनिंग हो गई, है ना। आपने उस तरीके से उस रिलेटेड भी लर्न करने की कोशिश करी, वी और डब्ल्यू एन पी, इस तरीके से। फिर आपने उन चीजों के सिस्टम्स को, थ्योरीज को एज अ सिस्टम पूरा पढ़ा कि उसने किस तरीके से उस थ्योरी को दिया, जैसे सिस्टम हायरार्किकल थ्योरी एज अ सिस्टम पढ़ी हमने, इजंट इट। तो कि Yes. पहले हम रोड मेमोरी को पढ़ते हैं, फिर हम जो है रोड मेमोरी से एसोसिएटिव लर्निंग से कॉग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन के ऊपर आते हैं, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस के ऊपर आते हैं। तो एज अ सिस्टम भी हमने चीजों को पढ़ा। फिर हमने सीखा कि हम चीजों को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, हाउ कैन वन थिंग बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर। तो फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन में भी ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स दे स्टे ओनली ऑन वन लेवल, नहीं ना, हम चीजों को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। इवन इफ इट इज एन एयर कंडीशनर, उसकी भी हम सर्विस करवाते रहते हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम बाईसाइकिल and we came to trains and then we came to airplanes and now we are thinking about flying cars, है ना, ट्रांसफॉर्मेशंस। एंड देन इम्प्लीकेशन ऑफ द थिंग्स, जैसे कल रात को देयर वाज एन अर्थक्वेक एट आवर प्लेस, ओके, सो वी एक्चुअली इवैल्यूएटेड द इम्प्लीकेशंस कि probably all these things that are happening, उत्तराखंड में इतना ग्लेशियर ऐसे it happened, then coronavirus came and so we evaluated implication own things जो हमने करी हैं कि शायद हम लोगों ने एनवायरनमेंट को इतना खराब करा है, एंड वी ऑल्सो लर्न कि जो चीजें हमने सीखी है हम उनको कैसे अप्लाई करें, no, what are the implications of the things that we have learned in real life scenarios. UCR STI, we learn things as units, we learn them as we form classes of them, we study relation between things, we study things as systems, we also study how things can be transformed and what could be the implications of those transformations. Okay, so 4 contents, 5 operations are performed on 4 contents and give us 6 products. हमने पढ़ा कि इसने स्ट्रक्चर की बात करी थी, तो वो स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर की बात करी, इसने किस तरीके का, कौन सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, क्यूब, yes, right. और इनिशियली व्हाट ही सेड, इनिशियली ही टॉक्ड अबाउट 4 and 6, 120 मेंटल एबिलिटीज होती हैं जब उसने फर्स्ट मॉडल दिया, which was probably 1955, and eventually इसका मॉडल 2 बार रिवाइज हुआ, he said 121 and he came to 180 factors eventually. तो अभी का जो प्रेजेंट रीसेंट मॉडल है that is 180 factors, first model had 120 factors. Okay, कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ नहीं याद भी नहीं हुआ हो, कुछ भी, anything? Oh, ma'am, but the one that we studied, that consists of 150, isn't it? Like operations may, like we have 5, then contents may we have 5, and then we have 6, so which makes up to 150. ऑपरेशंस में ये जो मेमोरी है ना, Yes. इसको ही फर्दर डिवाइड्स, आई विल शो यू। ओ ये क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, so hard to operate these things.
उसने इस डिवाइड कर दिया विच इज मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी, कि मेमोरी में चीजों को रिकॉर्ड करते हो और उनको रिटेन भी करते हो. He divided memory into, इस तरीके से operations भी जो है वो 6 हो गए. So eventually he came to 5 contents, 6 operations and 6 he products. That will make it 180, I hope. है ना? Yes, 6 5 are 30, 30 into 6 180. Yes. So memory was further divided into memory retention and memory recording. कि आप मेमोरी में चीजों को रिटेन कर, मेमोरी में चीजें जो है वो रिकॉर्ड भी होती हैं, और जो मेमोरी में चीजें रिटेन होती हैं उनको आप फर्दर यूज कर सकते हो टू प्रोड्यूस थिंग्स डाइवर्जेंटली और कन्वर्जेंटली. ओके, एनी क्वेरीज? सारा समझ आया जो भी हमने आज पढ़ा? वर यू गाइस एबल टू लर्न थिंग्स? yes. Okay, we'll learn theory of multiple intelligence tomorrow. Okay, that is it. Any question ask, otherwise we can end the meeting. मैम सिमेंटिक का मतलब एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? Semantic is related to meaning words. It is related to language. Words. वर्ड्स. Anything else? ओके, थैंक यू. Okay, all right. Thank you, ma'am. इसमें they have even given कि Guilford का जो latest model है और I think that will help. Okay, thank you so much. We'll meet tomorrow. I'll inform the timings in the group. Yes, ma'am. Bye-bye. Thank you so much. Thank you, ma'am.